جو صاحب بہار شریعت نے لکھے ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو ہم نے صرف 20 پڑھنے ہیں جو لوگوں کو زیادہ آتے ہیں، یعنی نماز کے اندر بندے سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، ایسے واجبات جو بندہ اکثر غلطی کر سکتا ہے ان کو صرف پڑھیں گے، باقی جو ہے 49 اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو، سننے والوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہمارے سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب، لائک آ کے شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام اور بنیادی جو فقہی مسائل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو کل ہم نے سبق پڑھا تھا سارے واجبات کا، کون سا جی؟ کون سے واجبات؟ کس کے واجبات؟ کیسے واجبات؟ کس کے واجبات سر؟ نماز کے واجبات۔ کل ہم نے 2 پڑھے سے ہو کہ 3؟ 2 تو ٹوٹل ہمارے کتنے ہو گئے ہیں جی؟ 7۔ ہم جس طرح میں نے پہلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ ٹوٹل واجبات کتنے ہیں، یاد ہے کسی کو؟ جی یاد ہے کسی کو؟ کتنے؟ 49۔ کتنے جی؟ جو صاحب بہار شریعت نے لکھے ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو ہم نے صرف 20 پڑھنے ہیں جو لوگوں کو زیادہ آتے ہیں، یعنی نماز کے اندر بندے سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، ایسے واجبات جو بندہ اکثر غلطی کر سکتا ہے ان کو صرف پڑھیں گے، باقی جو ہے 49 اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو، سننے والوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ تو واجبات جو ہوتا ہے اس کا آپ کو حکم کا پتہ ہے؟ بتا چکا ہوں پہلے کئی مرتبہ۔ واجب کا حکم کیا ہے؟ نماز کے واجبات کا حکم کیا ہے کہ نماز میں واجبات اگر آپ جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو آپ کی نماز واجب الاعادہ ہے، اگر بھولے سے رہ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سجدہ صاحب واجب۔ یہ ہے حکم، اور کیا ہے؟ لکھ دیتے ہیں یار، ایسے آپ کو یاد نہیں رہتا۔ جی واجبات کا نماز میں حکم، باسط صاحب آپ علماء ہیں تو وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کے واجبات کو ہلکا جانتا ہے یا جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو ایسا شخص کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ نماز واجب الاعادہ ہے۔ واجب الاعادہ کا مطلب بتائیں، کون مرد مجھے بتائے گا؟ جی علماء، شہری صاحب بتانے لگے، ماشاءاللہ علماء، کافی دنوں کے بعد آپ میری کلاس میں بیٹھے ہیں تو مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ جی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، شاباش جی۔ واجب الاعادہ کا مطلب ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی بلکہ دوبارہ پڑھے۔ کون پڑھے؟ جس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے۔ ہاں اگر بھولے سے رہ گیا، پتہ نہیں چلا، تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ سجدہ صاحب واجب آتا ہے۔ سجدہ صاحب میں نے کل بھی بتایا تھا، تاکہ ہر ویڈیو میں بار بار بتا دیتے ہیں تاکہ
लोगों को समझ अच्छे तरीके से आ जाए कि नमाज के फ़राइज़ में से किसी फ़र्ज के अंदर देर हो जाए, नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब छूट जाए या वाजिब में देर हो जाए, तो इस कमी कोताही को पूरा करने के लिए जो नमाज की एंड वाली रकत में तशहुद के बाद जो 2 सजदे किए जाते हैं उसको सजदाए साहब कहते हैं। और सजदा साहब वाजिब कैसे आता है? जितने भी वाजिबात आप छोड़ते जाएंगे जो बंदे को, जिस बंदे को आते हैं। इसलिए नमाज के बड़े बरीकी वाले मसले हैं। नमाज के मसाइल बंदा पूरी जिंदगी भी सीखता रहे तो फिर भी मुश्किल है कि नहीं सीख सकता, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। सितारों के आगे जहां और भी हैं इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं, तो कोशिश में लगे रहना चाहिए। हर वक्त कोशिश करेंगे तो फिर ही है जनाबे वाला, आपको इस चीज का सवाब भी मिलेगा। हदीस पाक में आता है ना कि बंदा जिस नेक काम की नीयत कर लेता है फिर वो किसी वजह से उसको पूरा नहीं कर सकता, कोई भी वजह हो सकती है, अल्लाह ताला उस बंदे को उस नेक काम करने की नीयत का सवाब भी अता फरमाता है। उस्मान साहब, हमेशा नेक काम करने की तमन्ना दिमाग में, दिल में रखो। हाँ जी, जिस तरह हम भी रखते हैं, बेहतर से बेहतर करने की नीयत। बाकी देर हो सकती है, लेकिन आपको जो बैठे हुए हैं ना, आपको मैं इस वीडियो में सलूट मारना चाहता हूँ, क्योंकि बारिश बड़ी थी ना लाहौर में। आज बारिश थी भाई, बारिश थी ना, गली में पानी भी खड़ा था। तो इश्क के इम्तिहान और भी यहाँ का मतलब है कि घर की गली में खड़े हुए पानी से गुजरकर मदरसा नूरुल कुरान में पहुंचना, यही जनाबे वाला मदरसे की आपके जो कुरान पाक के साथ आपका इश्क है, मदरसे के साथ जो आपका इश्क है, तो आप इश्क के इम्तिहान में कामयाब होगे। और जो घरों में बैठे हुए हैं वो, अब सबका बात तो एक ही होगी, क्यों नहीं आए जी आप? कारी साहब, बारिश बहुत शदीद हो रही थी। क्या हो रही थी जी? मेरा ख्याल है कि आधे नहीं आए तकरीबन, ऐसे ही है ना जी। ये सबको कारी साहब दिखाएं जरा, जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये वो मर्द मुजाहिद और मर्द कलंदर हैं कि जो बारिश में भी अपनी तालीमी मसरूफियत को मद्देनजर रखते हुए अपनी इस प्यारी दरसगाह यानी मदरसा नूरुल कुरान में तालीम हासिल करने के लिए पहुंचे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब ने सबक सुनाया भाई? सबक भी इन्होंने सुनाया है। उसके बाद चूंकि मैंने कहा चलो ये भी थोड़ा सा एंजॉय करें, 1 घंटा रुखसत भी दी है आपको। तो ये सारी चीजें जो हैं, बंदा कामयाबी वही है जो सारे इम्तिहान पास करके जनाबे वाला आगे, सितारों के आगे जहां इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये तो कुछ भी नहीं है इश्क का इम्तिहान, ये तो पढ़ना था, आपने कुरान आगे पढ़ना था जनाबे वाला। हाँ जी, और कोई अच्छी बातें सीखनी थी। तब अगर आप गली के पानी से गुजर कर आ जाते, और चाचू जी कहाँ से तशरीफ लाए, देखें कहाँ से तशरीफ लाए, ये देखें, बच्चे देखेंगे ना, जो नहीं आए वो देखें। लोगों को तो नहीं पता ना कहाँ से आए, बच्चों को तो पता है इस बच्चे का घर कहाँ पे है, इसका कहाँ पे है, इसका कहाँ है। फिजान साहब, मलक हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी दूर है, मेरा ख्याल है इसका और मनशा लोगों का जो है, रिजवान मनशा इधर है, आपका और इसका सफ़र बराबर बनता है मेरे हिसाब से। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। वाजिबात की बात चल रही थी, तो कल हमने टोटल पढ़ लिए थे 5 पहली वीडियो में, 2 कल वाली वीडियो में। आज में भी 1-2 पढ़ लेते हैं। कौन सा पढ़ें जी? आज पढ़ लेते हैं वाजिब नंबर 8। कौन सा है जी वाजिब नंबर 8 पढ़े? क्योंकि आपको पहले बड़े आसान पढ़ाए हैं।
नवाज साहब पढ़ेंगे, नवाज साहब पढ़ के सुनाए जरा। शुरू से काट सकते। जी नहीं, ये चलो पहले सारा पढ़ेंगे। सवाल, नमाज में वाजिबात का हुक्म। जवाब, अगर कोई शख्स दौरान नमाज जानबूझकर वाजिब छोड़ देता है तो ऐसे शख्स की नमाज वाजिबुल इयादा है। अगर भूले से रह जाए तो सजदा सा वाजिब आता है। वाजिब नंबर 8, 2 कादों में तशहुद का पूरा पढ़ना। दोनों कादों में लगी, दोनों क्या सारा पढ़ते हैं, दोनों कादों में तशहुद का पूरा पढ़ना। यूं ही एक कादा वाली नमाज तब भी 2 कादों वाली नमाज हो तब भी तशहुद पूरा पढ़ना वाजिब। अगर एक रफ्स भी छोड़ेंगे तरक वाजिब लाजिम आएगा और सजा सा वाजिब होगा। पता चल गया जी। यानी बंदा 2 रकते पढ़ने के बाद जब कादा उला में बैठता है तब भी अत्तहियात जो होती है, अत्तहियात लफ्ज नहीं है, क्या लफ्ज है जी? अत्तहियात। या मुशद्दद है, ता साकिन नहीं है। हम लोग अक्सर गलती करते हैं, अत्तहियात क्या पढ़ देते हैं? अत्तहियात। अत्तहियात लफ्ज नहीं है, अत्तहियात। तो हम इसको पूरा पढ़ना, नमाज में कादा उला हो या कादा अखीरा हो तो क्या है जी? पूरा पढ़ना। ये नहीं है कि आधा छोड़ दें, यानी जहाँ पे अस्सलामु अलैना है वहाँ पे अस्सलामु अलैका पढ़ दें, या अस्सलामु अलैका की जगह पे अस्सलामु अलैना पढ़ दें, या दोनों में से एक पढ़ के आगे चले जाएं तो आपका वाजिब छूट गया। तो जब वाजिब छूट जाए तो क्या लाजिम आता है सर? सजदा साहब वाजिब लाजिम आता है। और अगर जानते हुए भी कि मुझ पर सजदा साहब लाजिम हो गया है फिर भी कोई नहीं करता तो ऐसे बंदे की नमाज वाजिबुल यानी दोबारा पढ़ना अगले सबक में मिलेगी जी। तब तक के लिए